Yes, Thank welcome you. Rachna ji. How are Thank you? you. I'm doing great. Thank you so much. एक छोटा सा वीडियो भेजा था आपके बारे में, तो मैंने यही बोला था कि आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट decluttering since I don't know more than 20 years. I have been speaking decluttering, but of course मैंने ये भी बोला कि जब मैंने I think the person you learned from Kondo Mary, am I right? Yes, yes. या तो मैंने उनका वीडियो देखा था आपका सुनने के बाद, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, एंड आई फाउंड कि उनका जो भाव था, तत्व है रादर, इज सो प्लीजिंग. देयर इज सो मच लव emitting from her, and I could feel what I could feel it in the video. I could see it in you also, in your smile and her smile. I said wow. And I thank Bindu to give me a rather opportunity to meet you. And I'm sure we all are going to learn a lot. I have been speaking a lot about decluttering the body, then the prana, then the mind, then the intellect and the soul. Also a decluttering of outside. But what I saw in the video, what was missing, probably the bhava by which you declutter and how you give away things or whatever, whatever I saw. Of course, we will learn more. So I had one little PowerPoint of 2-3 minutes, which if it resonates with what you say, then I'll show it also. So let us see. I'm eager to learn and enjoy this session. All of you who are here today, just be there till the end. You will get the real essence of what Rachana ji is going to share with us. And I'm sure all of you are as excited as I am. Okay, so Rachana ji, just for a little brief that we will be like about in a couple of minutes, you will start and just to give a brief of your journey, where you were and where you are now, why you took up this and all that, whatever you wish to share for about 15 minutes. Thank you so much. Thank you. So good evening and namaste to everybody out here. I know it's a Friday evening और बड़े सारे लोग weekend mode में आ जाते हैं. So first of all, seeing about 73 plus people here in the meeting is an amazing thing. And I really want to appreciate and thank and express my gratitude to all of you who've taken out time here to join and understand this topic. So I will try to give my best, whatever I know about this topic. And trust me, it's going to be a very interesting session. Briefly, मतलब ज्यादा आपको बोर नहीं करते हुए थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बहुत मेरा अगर बैकग्राउंड आप देखें तो आई बिलोंग टू द एजुकेशन इंडस्ट्री. ऑलमोस्ट 15 इयर्स एजुकेशन इंडस्ट्री में स्पेंड करने के बाद जब ये डीक्लटरिंग एक्सपर्ट और कौन मारी कंसल्टेंट इस जर्नी में आई, तो बड़े सारे लोग ऐसे कहने लगे, अरे तुमने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आप सफाई करने लग गई सबके घर में जाकर, तो ऐसा क्या हो गया? तो मेरे को भी शुरू में बड़ा चुभता था, यहाँ पे कुछ लगता था कि अरे यार, मैं तो इतना जो है मतलब कौन मारी इंटरनेशनल फेम वाली उनसे सीख कर आई हूँ और लोग जो है मुझे बोलते हैं साफ सफाई करने आप आ गई. तो फिर धीरे 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 मैंने अपने आप को समझाया. मैंने कहा नहीं, मैं खाली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की साफ सफाई नहीं कर रही हूँ, मैं एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा मिशन कर रही हूँ जहां लोग अपने सराउंडिंग को डीक्लटर करके कहीं ना कहीं अपने माइंड को भी डीक्लटर कर रहे हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस को भी डीक्लटर कर रहे हैं. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी. तो education industry में I was heading corporate relations and placements with one of the biggest B school of the country, which is Narsee Monjee Institute of Management Studies. But 2 साल पहले शौक शुरू से था ये सारी चीजें करने का, बट 2 साल पहले एक फॉर्मल मैंने इसमें कोर्स किया. आई लर्नड इट फ्रॉम मैरी कॉन्डो. जो लोग नहीं जानते, शी इज एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी. And
she outside India, ये जो decluttering and organizing is a $1 billion industry, and that's where this thought hit my mind कि कितनी सारी ऐसी गर्ल्स हैं इंडिया में जो पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ करना चाहती हैं। तो अगर हम इंडिया में भी कोई एक ऐसा करियर ऑप्शन लेकर आए जो इंडिया के बाहर एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है और वहां पर लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी दे तो कैसा होगा, और जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक्चुअली दैट इज द विजन with which I started my company, which is called Mesmerize. And moving forward, I have a vision that we will start the certification programs in India, especially for women and females who are really keen to make a career. बाकी बैकग्राउंड में तो बहुत सारी चीजें विजय जी ने आपको ऑलरेडी बता दी हैं मेरे बारे में। सो ये एक छोटा सा विजन लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ कि किस तरह से जैसे इंडिया के बाहर ये डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री है, किस तरह से इंडिया में भी हम इसको उस लेवल पर पहुंचा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो मेरे बारे में है ब्रीफली, बट आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ क्विकली कि आप लोग में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग इज द सेम? जस्ट लेट मी नो इफ यू फील इट्स द सेम, जस्ट लेट मी नो यस कि यार हाँ सेम ही चीज तो है, डीक्लटरिंग और क्लीनिंग एक ही बात है। Yeah, so it's a mixed this thing, and when I talk about it, I'm going to come and speak a little more. जब मैं मेन टॉपिक पर आऊंगी तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बात करूंगी। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में विजय जी, इफ यू अलाउ मी, एक छोटी सी कहानी, क्या एक इंस्टेंस शेयर करना चाहूंगी। और जितने लोग यहाँ पर, और स्पेशली अगर आप मदर्स हैं और इससे रेजोनेट करती हैं, कि मैं मेरी मम्मी को देखती थी कि मम्मी मेरी जो है हर एक वो सामान, जैसे हम लोग के बचपन के कोई खिलौने, शादी में कुछ दिया, कोई गिफ्ट मिला, वो हर एक चीज को जो है बड़े संभाल के, संजो के अपने पास रखती थी। और एक समय घर पे ऐसा आया कि वो बोलती है कि मेरे घर में सामान रखने के लिए जगह ही नहीं है। आप में से कितने लोगों को अपने लिए या अपने घर पे कोई मेंबर ऐसा है, या मम्मी या ग्रैंड मदर, कौन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि अरे हाँ ये लोग हर एक चीज को अपने पास संजो के, संभाल के या अटैच्ड होके रख रहे हैं? इफ यू फील दैट, इफ यू रेजोनेट, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और एग्जैक्टली इसी एक थॉट से ये पूरे कंसेप्ट को मैंने अपनी लाइफ में लाया और इसको अपना प्रोफेशन और आगे पर्पस बनाया। सो दैट इज ब्रीफली माय एक्चुअली ये हम सबके साथ होता है, ये हम सबके साथ होता है, और इसको ही हम किस तरह से अपनी लाइफ में बेस्ट वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट्स एग्जैक्टली what this entire session is going to be all about. तो मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में देखी कि विजय जी ने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला जॉय शॉप, जॉय शॉप। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो पूरा कंसेप्ट ऑफ डीक्लटरिंग है वो भी जॉय पर ही बेस्ड है, कि आप लाइफ में किस तरह से अपनी लाइफ को जॉयफुल बना सकते हैं। So that's exactly the entire concept is all about. I'm going to share little more as we get into the detail, but I think right now I wanted to introduce myself to you also. Over to you, Vijay ji. Yes, thank you रचना जी। yes, हम लोग जो है इसको कभी वर्कशॉप और ये नहीं कहते हैं जॉय शॉप, हम यहाँ पे जो आते हैं वो जॉय करने के लिए आते हैं। वैसे ही हमारे अगर कुछ असाइनमेंट्स होते हैं तो हम उसको होम प्ले बोलते हैं, होम वर्क नहीं कहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीजें हैं। So I think you can continue whatever the things you have in the share, so you can be in a flow, not an issue. ठीक है, thank you so much, thank you so much. So
कमिंग टू माय क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्लीनिंग और डीक्लटरिंग सेम प्रोसेस है, राइट? और बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिफरेंट है, और बहुत सारे को लगता है लगभग लगभग सेम प्रोसेस है। तो आई वांट टू स्टार्ट फर्स्ट with telling you a difference between the word cleaning and the word decluttering, कि ये दोनों कैसे, क्या डिफरेंस है। अगर आप क्लीनिंग की बात करें तो क्लीनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो डस्ट होती है या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स नेचर क्रिएट कर रहा है, जिसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली क्लीनिंग। मगर जब हम डीक्लटरिंग की बात करते हैं, सो डीक्लटरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ removing unwanted stuff, and it is a process of आप अपने आप को खुद कन्फ्रंट कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। सो मैरी कोंडो कहती है इट्स अ लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ डीक्लटरिंग, बिकॉज ये सारा अनवांटेड चीजें जो हमारी लाइफ में हैं, उनको लाने वाला, इकट्ठा करने वाला कौन है? हम खुद, हम खुद। तो क्लीनिंग में तो हमारे कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि नेचर क्रिएट कर रहा है वो चीजें। मगर डीक्लटरिंग में हम खुद वो चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस ऑफ डीक्लटरिंग is called a very, very, very powerful process, very empowering process, and people who go through this process, you know, have had amazing breakthroughs, because कहीं ना कहीं आप अपने आप को सवाल कर रहे हैं, आप अपने आप को कन्फ्रंट कर रहे हैं, इसलिए बड़ा ही empowering प्रोसेस है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ, ठीक है? तो आर यू ऑल विद मी? एंड ऑलरेडी विजय जी ने स्टार्टिंग में अनाउंस कर दिया कि आप लोग डायरी और पेन्स लेके आएंगे, तो आई एम श्योर यू ऑल हैव। सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज क्विकली आप लोग, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर रिस्पॉन्स, आप लोग अपनी डायरी में कोई 5 चीजें ऐसी लिखिए जो आज की डेट में आपको लगता है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं मोबाइल, अरे मोबाइल तो आजकल बहुत जरूरी है, जिंदगी है, अरे 10 मिनट खो जाता है, बिल्कुल उनकी सांस ऊपर नीचे हो जाती है, मोबाइल के बिना तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। घड़ी, अरे कुछ लोगों को लगता है घड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एकदम टाइम का पाबंद हूँ, टाइम की पाबंद हूँ, मतलब मैं घड़ी लगाकर सोती भी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इस तरह से आप सोचिए कि आपके लिए लाइफ में कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर आपसे दूर कर दिया जाए देन लाइफ विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू। शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उन चीजों के बिना रहना। 5 चीजें। और वंस यू हैव डन डूइंग दिस, और एग्जाम्पल्स दे देती हूँ मैं आपको छोटे छोटे। कुछ लोग खाने पीने की चीजों के कुछ बड़े शौकीन होते हैं, वो उसको लिखते हैं, नहीं नहीं मुझे तो रोज ये चाहिए ही चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो वो कोई चीज, ओके। नाउ भविष्य फॉर एग्जाम्पल इज रिटन कार, फॉर हर कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोथ्स, टीवी, नेटफ्लिक्स, लैपटॉप, म्यूजिक सिस्टम, टी, चाय के बिना बहुत सारे लोग नहीं रह सकते। ऑसम। क्लोथ्स, एयर, वाटर, ऑब्वियसली व्हाट्सएप, यस व्हाट्सएप, न्यू क्लोथ्स, सुपर। बिग लिस्ट है, 5 तक लेके आइए डॉक्टर योगिता, 5 तक लेके आइए। सो आई होप एवरीबडी हैज डन। You can show me a thumbs up if you have. Money, अरे मनी नहीं है तो जिंदगी में हनी नहीं है, विटामिन एम तो उसके बिना कैसे रह पाएंगे? करेक्ट? ऑल राइट, now, you have to do one thing with me.
नाउ इस 5 की लिस्ट को अब आप सोचिए कि अगर आपके पास ओनली एंड ओनली 5 days मोर हैं टू लिव, और आपको भगवान साक्षात दर्शन दे के बोलते हैं कि इनमें से कोई 2 चीज ही तुम अब अपने नेक्स्ट 5 दिन के लिए अपने पास रख सकते हो, तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आप स्ट्राइक आउट कर देंगे, और वो कौन सी 2 चीजें हैं जो आप अपने पास रखेंगे? ओके, वाटर, फूड, फोन, मनी, सत्संग। ओके, वाटर, फूड। तो अब आप देख रहे हैं ज्यादातर लोग या तो लोगों के पास यानी कि फैमिली, या तो फिर वाटर या बेसिक जो चीजें हैं उनके पास, उन पर जीरो डाउन हो रहे हैं। तो जब जब हम ये प्रोसेस, सो द क्रक्स इज द इंटेंशन टू मेक यू डू दिस प्रोसेस इज कि हमें ऐसा लगता है कि हम इन चीजों के बिना लाइफ में नहीं रह सकेंगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस, ऐसा टाइम आता है कि हम उनके बिना भी रह सकते हैं। तो जब मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को ये प्रोसेस करवाती हूँ तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे, इसके बिना तो हम नहीं रह सकते। बट अल्टीमेटली जब वो उसको लेट गो कर देते हैं, इवन देन लाइफ, इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है। बट क्या क्या क्लटर हो सकता है हमारे आसपास, राइट? तो वी आर सराउंडेड बाय मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लटर। अब क्लटर क्या है? व्हाट इज क्लटर? एनी अनवांटेड स्टफ, ऐसी कोई भी चीज जो हमारी लाइफ में कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, अनवांटेड है, लेकिन फिर भी हमने उसको पकड़ के रखा है। वो एड देखा है आपने, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। और हम लोग बहुत सारे जानते हैं लाइफ में कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं कर रहे। वो कपड़े होंगे जो शायद 10 साल पुराने होंगे, और स्पेशली लेडीज का कि वजन कम हो जाएगा तब पहनूंगी, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन पकड़े रहना छोड़ना नहीं। तो इसी तरह से देयर आर मल्टीपल थिंग्स which are not contributing in our life in any way, but we are still holding on to them. That is clutter. फिजिकल क्लटर तो होता ही है जो हमें एक्चुअली दिखता है, इसके अलावा बहुत सारा नॉन फिजिकल क्लटर भी होता है जो हमने अपने आसपास जमा करके रखा हुआ है। इट कुड बी इमोशनल क्लटर, नेगेटिव अनवांटेड थॉट्स। फिजिकल क्लटर तो वो हो गया जो आपकी अलमारियों में भरा हुआ है, जब खोलो अलमारी तो एकदम से इतने सारे कपड़े गिरने लगते हैं, होता है ना। आई एम श्योर लेडीज के साथ जरूर होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए कोई शर्माने की बात नहीं है, राइट? सो देयर इज इमोशनल क्लटर, नेगेटिव थॉट्स which are stopping you from letting you achieve your goals, take actions. There is mental clutter. बॉस ने कुछ बोल दिया, तुम ये काम नहीं कर सकती, सास ने कुछ बोल दिया, तुम ये काम नहीं कर सकती, और आपने अपने लिए एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बना दी कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकती। दैट इज मेंटल क्लटर। डिजिटल क्लटर, आपके लैपटॉप में जितनी अननेम्ड फाइल्स हैं, आपके ईमेल्स में जितनी अनवांटेड ईमेल हैं जिनको शायद ही आप कभी ओपन करके देखते होंगे, व्हाट इज दैट? डिजिटल क्लटर। सो इस तरह का बहुत सारा क्लटर है। तो लोग जब तक मुझे मिलते हैं बोलते हैं अरे आप फिजिकल को छोड़िए, आप सीधे बता दीजिए कैसे मुझे इमोशंस क्लियर, नेगेटिव इमोशंस भगाने, कैसे मुझे माइंड डीक्लटर करने का कोई तरीका है क्या? मैं बोलती हूँ हाँ आ जाइए, एक जड़ी बूटी है आपको दे देती हूँ, खा लीजिए, माइंड डीक्लटर हो जाएगा।
but actually it is a 4-step process. If you want, you can write it down. So जो आप अपनी लाइफ में decluttering का process start करते हो, it's a 4-step process, which starts number 1 with materialistic things, physical clutter. जो सर्किल का इतना छोटा पार्ट है मगर कोर है सर्किल का. तो एक सर्किल होता है, उसके अंदर जो कोर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. That is your physical materialistic clutter. And when you clear that, then you move on to the next part, that is decluttering people. There are so many people, energy vampires, unwanted people in your life, not doing any contribution. You're still sticking on to them. So the next step is decluttering people. Then decluttering body. What needs to go in your body in terms of food, in terms of thoughts. And last is decluttering your mind. तो हर चीज की शुरुआत आपके environment से होती है. I always say your outside decides your inside. तो कभी कोई नई हैबिट डालते हैं तो बहुत आप लोग ने बहुत सारे वर्ल्ड रेनाउंड स्पीकर्स और सबको सुना होगा कि create an environment that can support your habit. So for example, कुछ हेल्दी चीज खानी है तो शायद उसको अपने पास रखिए, सामने रखिए, right? So here what you're doing, you are creating an environment for success by decluttering unwanted things from your environment, from your surroundings. Now people tell me कि अरे आप तो बात कर रहे हो, खाली बात कर रहे हो, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ. These are all scientific things where so many scientific research, papers, proofs have been given that when you are surrounded by unwanted stuff, then your brain की जो cognitive ability होती है वो slow down हो जाती है. तो आप visually आप सिंपल सी चीज करिए कि अगर आपकी खाने की थाली में, और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, ये आपके साथ हुआ है कि अगर खाने की थाली में 2 चीजें हैं तो हम बहुत आराम से खा लेते हैं, या कहीं शादी में जाते हैं 2 आइटम है तो बस ठीक है, हाँ चलो ये खाना. अगर 5, 6, 8 चीजें हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. हमारा माइंड नहीं सोच पाता अरे इतने सारे आइटम्स है क्या खाऊं, और अल्टीमेटली कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पेट ही नहीं भरा, या पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा यार आज. तो इसी तरह से हमारे माइंड के साथ भी होता है. व्हेन यू हैव टू मेनी थिंग्स इन योर एनवायरमेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विजुअली. जब बहुत सारी चीजें आपका माइंड देखता है तो माइंड जो है लॉस्ट हो जाता है, माइंड इम्पेयर्ड हो जाता है, और उससे आपकी फोकस करने की एबिलिटी कम हो जाती है. That is why if you have too many things in your environment, it will affect your productivity. It will affect the way you are working. People who say they are procrastinating, why? Probably that could be one of the reasons. एक स्टडी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, उसमें बताया गया कि जब आप एक क्लटर्ड एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपका बॉडी एक हार्मोन होता है विच इज कॉल्ड कार्टिजोल. इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन. वो रिलीज करता है जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स काफी बढ़ जाते हैं. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, एंड विमेन विल फॉर श्योर रेजोनेट विद इट. अब एक हफ्ता की छुट्टी हुई, वीकेंड हुआ, और उन्होंने वीकेंड लगाकर पूरे घर में हर चीज चकाचक कर दी. ये यहाँ रहेगा, वो वहां रहेगा, अननेसेसरी स्टफ हटा दिया. करेक्ट? एंड देन आफ्टर 10 days, 15 days, अगर बाय चांस बच्चों ने बुक जगह पे नहीं रखी,
हस्बैंड ने वापस गीला टॉवल बेड पे छोड़ दिया और वो कहीं से आई, ऑफिस से आई और उन्होंने देखा, घुसते ही अरे ये चीज जगह पे नहीं है, ये यहाँ नहीं है. They get so stressed. So it does actually give you stress. It does give you stress. And that is the reason, why having a declutter environment is very, very important. वो एक पॉइंट खाली ये बोलना चाहता था, जैसे आपने कहा कि जनरली पब्लिक बोलता है आउटसाइड की छोड़ो, हमें इमोशनल चीजें दो, बट अगर आपके सराउंडिंग ही सब क्लटर है तो आप कैसे फोकस कर पाओगे माइंड के लिए. तो वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया है. इट्स वंडरफुल. थैंक यू. Thank You you, can sir. continue. Thank you. So this is why decluttering is really important, and you can go and check. अब simple सा और एक example कि चाबी गुम गई, चश्मा नहीं मिल रहा है, चाबी नहीं मिल रही है. अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप खाली 2 मिनट या 3 मिनट लगा रहे हो उस चीज को ढूंढने में, बट एक्चुअली अगर पूरे महीने में देखा जाए और पूरे साल में देखा जाए, there are researches that have shown that people waste 20 minutes in a day looking for lost things, lost passwords, lost keys, any lost items. 20 minutes. अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते होंगे कि अगर दिन में आप 20 मिनट इन सब चीजों को ढूंढने में लगा रहे हैं तो एक्चुअली आप कितना टाइम पूरे साल में हो रहे हैं, और उस टाइम को आप एक्चुअली अगर बचा सके तो आप लाइफ में क्या कुछ नहीं बड़ा कर सकते हैं. तो जो लोग बोलते हैं कि टाइम की कमी है मेरे पास, एक्चुअली कमी टाइम की नहीं है, कमी जगह की भी नहीं है. कमी ये अनवांटेड चीजें जो हमने पकड़ के रखी हैं उसकी है. So this is a beautiful process, the entire KonMari process. It's a Japanese process, and I'm going to now share with you some tips कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर you can start small steps and start decluttering your environment. So KonMari process basically was... Rachna ji, before you start, I'll just give you a little brief that, we have this, what we have learned from Guruji about Siddha Samadhi Yoga. That's the fundamental program which we all come around from. I did this in 1989, and that's where my life got transformed. So the program is, of course, you have shared the materialistic, and then decluttering people, body, mind, and that's the program starts key. It is about cleansing the 5 koshas of us: Annamay, Pranamay, Manomay, Vijnanmay, Anandmay. I think you must be knowing. So ये अन्नमय यानी कि खाने को declutter, okay? प्राण का, that means our breath, उसका declutter. फिर mind decluttering, then belief, intellect, buddhi decluttering, and last is अहंकार का decluttering. ये 5 कोश का जो प्रोग्राम है, 14 दिन का प्रोग्राम है, 10+4 days. तो इसमें से करने के बाद lot of people say, their diabetes absolutely in control, blood pressure in control, arthritis, and so many miracles happen in these 14 days. और फिर बाद में क्या होता है, प्रोग्राम खत्म होता है तो 2, 4, 6 महीने में वो अभी ठीक हो गए, और 4-6 महीने के बाद वापस वो ब्लड प्रेशर शुरू होता है, वापस ये आ जाता है, वापस ये आ जाता है. अरे क्या हुआ, So जब मैंने ये प्रोग्राम किया था, I used to have this allergy, not allergy, but of course I came to know what it was later on, many years later. But I used to go on scratching myself during college time and during business time. Every time I was known to go on scratching myself. जब मैंने ये प्रोग्राम किया तो suddenly ये disappear. 4-6 महीने के बाद मेरे दोस्त बोले, अरे अभी तो स्क्रैच नहीं करते हैं. यार मैं तो भूल गया. So that decluttering happened. Then it would come back to me. फिर वापस निकल जाता, फिर
and I didn't understand till about 6-7 years, till I did one program by Guruji only. He had recommended one called non-violent communication. तो जब मुझे मालूम पड़ा कि इमोशंस जो डिक्लटर होता है तो डायरेक्ट स्किन से रिलेटेड है, तो एनीवन इज हैविंग ए स्किन प्रॉब्लम, दैट मींस इमोशंस को हमने हैंडल नहीं किया। तो ये तो सब जो है निर्गुण है। अभी सगुण में ये चीज मैंने बहुत कुछ हमेशा बोला है कि declutter the surroundings and the clothes, the cassette, at that time cassettes, then later on CDs, then the books and everything. I said, even in our ashram we have, I will invite you to the ashram we have in Pune, we have 80 children. So Kapil ji is there, Narendra ji is there in this thing. तो मैंने उनको blanket permission या rule बनाया कि जो भी हमको नहीं चाहिए इधर से निकाल दीजिए, बांट दीजिए, गांव में दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए, कुछ भी, लेकिन अगर चीज इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो बिल्कुल रखना नहीं है। And we have these thumb rules, if you are not using anything for more than 3 months, according to me, 3 months to 6 months maximum, give it, ना तो आपका है ना किसी और, just दे दो, और ये महसूस करो ये। तो you were going to speak about Marie Kondo का जो टेक्निक्स है, तो उससे पहले बोलने से पहले I wanted to share this कि materialistic things जो मैंने वीडियो देखा, I was really keen, happy and found something beautiful in that which you can share कि जब हम declutter करते materialistic things में, उसमें भी कितना भाव है वो आप जरूर बताइए सभी को, and then of course further we will share. Yeah. Yes, carry on. Thank you. So, like Manoj ji said that yes, उसमें कितना भाव है, किस तरह से उस पूरे प्रोसेस को किया जाता है, and where we've been going wrong. जैसे कि बहुत सारे लोग ये शेयर करते हैं कि मैंने जैसे लेडीज का बेसिक एग्जाम्पल लिया कि वो लोग कभी समय निकाल कर 2 महीने 4 महीने में हर चीज ऑर्गेनाइज करती हैं, सेट करती हैं, और वापस थोड़े दिन बाद सब चीज वापस जगह से इधर उधर हो जाती हैं। सो वन ब्यूटीफुल थिंग मैरी सेज इज दैट कि आप लाइफ में कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह सकते जब तक आप डाउन साइज नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। तो अगर आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, लोग कॉर्पोरेट्स में भी बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। तो अगर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ संभालने की कोशिश करेंगे, आप हो जाएंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज टू डीक्लटर, डाउन साइज। डीक्लटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो डीक्लटर फर्स्ट, देन ऑर्गेनाइज, एंड यू विल सी द ब्यूटी। अच्छा, फिर बहुत जनरल, आई वांट टू आस्क यू ऑल कि जनरली जब आप लोग डीक्लटरिंग या ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करते हैं तो हाउ डू यू डू? आई मीन हम लोग को बचपन से ऐसे ही सिखाया गया है कि चलो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करते हैं, तो आज ये रूम करते हैं, कल वो रूम करते हैं। तो हम बेसिकली लोकेशन वाइज करते हैं, राइट? अगर आप सेम पेज पे हैं, ऐसे ही करते आ रहे हैं क्योंकि हमको ऐसे ही सिखाया गया है। लेकिन जो ये कॉनमारी मेथड है ना, ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है और इसमें हमको ट्रेडिशनल वे से थोड़ा अलग सिखाया गया, जिसकी वजह से अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो चांसेस हैं कि आप लाइफ में मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आप वापस क्लटर्ड या अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। सो फर्स्ट इज डीक्लटर, देन ऑर्गेनाइज। सेकेंड इज नेवर ऑर्गेनाइज बाय लोकेशन। तो घर की या ऑफिस की जितनी भी चीजें हैं उनको सबको Marie Kondo has divided them into 5 categories. If you want, you can note it down. 5 categories, starting with number 1, clothes. अब clothes में आपके clothes आ गए,
आपकी एसेसरीज आ गई, फुटवियर्स आ गई, ज्वेलरीज, पर्सेस, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द क्लोथ्स कैटेगरी. सो द फर्स्ट इज क्लोथ्स. सेकंड आफ्टर क्लोथ्स, और इसके पीछे एक बहुत डीप साइकोलॉजी है, सो ध्यान देके सुनिएगा एंड आई एक्सप्लेन दैट साइकोलॉजी आल्सो टू यू. सो आफ्टर क्लोथ्स कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी, बुक्स. अब हम में से कितने लोगों के पास ऐसी बुक्स हैं जो हमने खरीद ली, कभी पढ़ी नहीं, उठाई पढ़ने के लिए, अच्छी नहीं लगी तो भी नहीं पढ़ी, रखी हुई है लेकिन घर पे रखी हुई है, या फिर पढ़ ली है ये सोच के कि इसमें से ये चीज बड़ी अच्छी है, शायद कभी फ्यूचर में लगेगी, ये सोच के हमने वो बुक अपने पास रखी हुई है. All of us have such books. So books is the second big category. Third is papers. अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, यूज्ड चेकबुक्स हम रखते हैं, शायद कभी रेफरेंस के लिए लग जाए फ्यूचर में, या फिर कभी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीद के लेके आते हैं, उसके संग जो मैनुअल्स मिलता है वो हम जरूर संभाल के रखते हैं, खराब हो गया तो हमको यूज में आएगा. बट एक्चुअली अगर आप देखो तो हम उसको, खराब भी हो जाता है तो यूज नहीं करते, हम यूट्यूब पे जाके देख लेते हैं कैसे ट्रबल शूटिंग करना है, वो वैसे ही रखा जाता है अलमारी में. सो पेपर इज अनदर बिग कैटेगरी. यस, डॉक्यूमेंट्स, कितने पेपर हम प्रिंट आउट निकाल के वो करके पेपरलेस चिल्लाती रहे गवर्नमेंट, बट हम रखते हैं. Then next comes kumono. Now kumono is a Japanese word which means miscellaneous items. यानी कि जो भी चीजें आपकी फर्स्ट 3 कैटेगरीज और एक लास्ट कैटेगरी और है उसमें नहीं आ रही, वो आपकी मिसलिनियस या कुमोनो कैटेगरी में आती है. सो विच इंक्लूड्स योर किचन ऑल्सो. किचन का सामान, आपके एक्स्ट्रा बाथरूम में जितना सामान है, कॉस्मेटिक्स, ऑल दीज थिंग्स, स्टोर रूम में कुछ रखा है, दैट कम्स अंडर द कुमोनो कैटेगरी. एंड लास्ट वन is emotional items. Greeting cards. कभी किसी ने गिफ्ट दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं यूज करेंगे, पर किसी को देने को भी नहीं हो रहा है और वो रखा हुआ है. Photographs, lot of photographs. I know so many people who are keeping, their parents are not in this world, but they are keeping their so much stuff. So when you follow the category wise order, तो जो क्लोथ्स होते हैं वो easiest होते हैं to let go. मैंने बोला declutter first then organize. तो क्लोथ्स आपके easiest होते हैं डिसीजन लेना, और जैसे जैसे आप कैटेगरी वाइज बढ़ते जाते हैं, और इमोशनल आइटम्स हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? कितने सारे लोग, हम लोग बहुत सारी चीजें, ड्रेसेस, ये सब इसलिए सोच के रखते हैं, कहते हैं हमें इमोशनल अटैचमेंट है. सो बाय द टाइम, यू नो, द फर्स्ट इजीएस्ट कैटेगरी इज क्लोथ्स, देन बुक्स, देन पेपर्स, then kumono, and the last one is emotional items. So by the time you come to the emotional items, you are able to tune your brain in a way that it is able to let go. आपका brain mentally इतना prepared हो चुका है, होता है let go करने के लिए. तो बहुत सारे लोग जो मैं देख रही थी कि चैट में अगर कई लोग पूछ रहे थे ना कि कैसे इमोशंस को let go करें, ये आप उसका ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं. सो यू स्टार्ट टू लेट गो, और देन यू सी कि आप इमोशनल आइटम्स से भी डिटैच होना शुरू कर देते हैं व्हेन यू फॉलो दिस प्रोसेस. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस, जहां पर अगर वो ड्रेस आपने रखी है जो आप शायद पतले होने पे पहनने का सोच रही हैं, so the process teaches you to live in your present, not in the past, not in the future. And one beautiful thing is, while you are letting go, जब आप उसको discard कर रहे हैं, you have to give a gratitude to every item
कि आप मेरी जिंदगी में पर्पस पूरा कर चुके हैं, अब आप किसी और की जिंदगी में जॉय स्प्रेड करिए, खुशी लेकर आइए. So while decluttering, you have to ask yourself two questions. If just I will take 2 more minutes and I'll wind up. So while decluttering, you will ask yourself two questions. और वो बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है. जैसे आप क्लोथ से स्टार्ट करते हैं तो आप पूछते हैं अपने आप से कि डज इट स्पार्क जॉय फॉर मी, क्या ये मेरी लाइफ में जॉय लेकर आ रहा है. और आप देखेंगे जब आप ये प्रोसेस करेंगे, इट्स अ वेरी एम्पावरिंग प्रोसेस. यू शुड सी द नेटफ्लिक्स सीरीज. उसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी क्लॉथ को या किसी आइटम को टच करते हैं, आपकी बॉडी फ्रॉम विद इन रिस्पॉन्ड्स. तो कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगी और आप अपने पास रखना चाहते हैं, वर्सेस कोई ऐसी चीज जो शायद आपने सेल में खरीद ली मगर महंगी है इसलिए रखा है, यूज नहीं करने वाले लाइफ. So that's one beautiful thing, कि ask yourself whether it sparks joy for you, or second, is it a functional item? Is it making your life easier, better or faster in any way? अगर ये पैरामीटर पर वो चीजें खरी उतरती हैं, then you keep it with it, else let it go with gratitude. So that's the entire process. Beautiful. In fact, that's the point I got from the video. The way you give that clothes, I have given thousands of things and thousands of clothes, and I keep on decluttering. But this bhav, and I have taught about gratitude millions, billions of times, the word comes. But giving with gratitude to the level which I saw, we would give it. But that gratitude angle which we have been teaching, but while giving that clothes and how you fold with a lot of love, that is so beautiful. In fact, मैं एक टाइम गया था एक हमारे मेडिटेटर के घर पे, कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले. उनके घर पे गया था. मैं हमेशा वो कहानी को हमेशा बताता हूँ. एंड आई सॉ, वो जो बच्ची थी हमारे स्कूल में पढ़ रही है, तो उनके घर पे गए. तो मैं उनके लॉफ्ट में देखा तो एक पंखा था. और पंखा मतलब पंखा इतना जूना कि मैं उसका जो पंखे का वो है, और 3 वो होते ना, वो 3 में से 2 मिसिंग है, सिर्फ एक ही है. मैं बोला वो क्या है, वो रखा है वो कभी सोचा नहीं ऐसे, प्लीज क्लियर दैट. फिर मैंने बोला एक ट्राइसिकल देखा, 3 पहिए का एक ट्राइसिकल. बोले किसका है, क्योंकि उनके बच्चे तो 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में है हमारे क्लास में. तो किसके, वो मेरे बच्चे हैं. कौन से बच्चे हैं भाई? तो बोले नहीं, मेरे जब वो 2-4 साल की थी ना उस टाइम, तो फिर रखा क्यों है? तो वो मेरे को भी ध्यान नहीं दिया. ऐसे प्लीज बिफोर गोइंग clean this, clean this, clean this. So every house I go, some people get scared because I say, hey, this part remove, this part remove, put Ganpati picture here, put Guruji's picture if they are connected with Guruji, and then put this, clear this, clear this, clear this. I just went in Toronto to one of the ladies' house. I said, can you, they said, this is my brand new house, can you come and all? I said, yes, surely. We went there. And then I said, she has made a new kitchen, new this. And between the kitchen and the drawing room, they have put one big wall. I said, why have you put this wall? No, so we can put all this saman. So if you can remove the wall and see this, how much space you will get, you get a nice feeling like this, like this, like this. So wherever we have been going, we have been, but the science of giving it is what you are giving. And it's so beautiful. We'll ask Rachna ji, you can continue. I was just sharing with a few people were asking me today. Mansi was there. She was asking, something she told me. So I said, I just realized that I had about 12,000 photographs in my this thing. And like I said, we keep on decluttering every now and then. So this time it was about the photo time has come. So I said, I was telling the boy, just go through every photo and delete if you don't know, or send it to them and then delete it, or keep it and put it in there. I tell everyone,
keep a happy photo of yours. So you are there, I'll put you on the spotlight that you were telling me today only that Manojji, why don't you, something you told me that do something. I said, listen, I'm not sending them some voicemail. I'm sending them their own photo and I'm sending them their photo. I'm putting it into the contact list and then I delete it from this thing. So I'm clearing or decluttering the photographs. I know some people who have more than thousands and thousands of photos, they never see them. Then they have thousands and thousands of letters, they never see them. Then I have, so I said, if you are using it regularly, it is useful for you. If it is not usable, then you have to ask yourself the question ki, when did I last use it? शादियों का एल्बम है, कभी 20-20 साल हो गया देखा नहीं शादी का एल्बम, so what is the point, either. So I tell, I said, you cut out those albums and use and make books for your children, daddy, mummy. In ISP we say that use all the albums. Of course that time album आजकल digital में ही है. Digital maybe you organize it. Like I've got one happy couples, happy faces, for R&D, for referring for this purpose, that purpose. So if it is organized, then it is useful. Otherwise, just pass it on and delete it off. So we have something like today also I have got so much space in the cupboard for t-shirts, so much for pajamas, so much for kurtas. So if so many people give me, so if it doesn't fit there, that means the cupboard is speaking to me that, hey, listen, it's time to give it away. I'm not going to buy a new cupboard. The cupboard is telling me now you guys know. So today itself, I removed about, some t-shirts we came back, someone gave me, and I removed so much, and then I packed it. And of course, I will use your method when I'm taking it to Qatar, our ashram tomorrow, and distributing. So normally I would have just gone there and say, listen, take this, and give it away, which is a common practice. I just want to add here and share a figure with you, and which is based on a research that 80% of the times we only wear 20% of our clothes. A lot of you would agree. क्योंकि हमें इतने होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हमें ध्यान ही नहीं होता कि उतने वो हमारे कबर्ड में हैं भी. Right. Absolutely. In fact, but when we see the videos abroad, when we went, there's a India में और उधर में काफी अंतर है. They have these walk-in wardrobes, winter clothes, summer clothes, spring clothes, autumn clothes, and I mean, you can have a shop. Each one can have a shop. You can have a sale also in that, So it is, the more we clear this, at least materially starting. This was, I don't know, in my case, it was probably a habit from childhood. I would love to organize these small. So we have one program called OTM, Organizing and Time Management, based on this itself. Then we have a program called VBOTM, that means Visions, Beliefs, Organizing and Time Management. Wow. So these are, I remember when I was small, I would love to organize things and clear and just keep on clearing. I did not know the science, but it would make me feel wonderful. And based on that, I have told this, everyone, we have this another program that even your mind, whatever comes in your mind, pen it down or write it down. Anything which is creative, productive, useful, and useful to you, write that thought down. Anything which is not wanted, you have these papers like this we have here, and any of the, like you said, आपने बताया कि papers को clear करो. तो मैं क्या बोलता हूँ लोगों को कि पेपर्स जो अनवांटेड है, बहुत से है, बहुत, उसको मैं कट करके स्टेपल करके रखता हूँ. I can show you, I've got a bundle. और उसको even used और unused, उसको स्टेपल करके अच्छी तरह से कट करके रखता हूँ, तो एक पैड बन जाता है. और पैड को हम, even if it is typed out, I yet keep it. I use it for catharsis. Catharsis means all the emotion, unwanted emotions, you put and scribble like a paper pen. Take a pen and just scribble, then tear it and throw it. That itself, you are recycling, reusing, and clearing your own unwanted emotions,
clearing your emotions and do a catharsis. So you want to say anything about that, Rachna? Yeah, in fact, I truly feel that, whatever you are saying and whatever this concept is, about decluttering, it's a perfect synergy. So everything that you're talking about, for example, जैसे आपने बोला memories का, अब बहुत सारे लोग memories या photos जो होते हैं उसको उठाकर एक box में या अलमीरा में वो करके रखते हैं. In fact, in this process also what we say is memories are to make you happy. So if you have pictures of your family, put them make a collage, put it in a place जहाँ पे आप उसको रोज देखो तो आपकी energy elevate हो, आपको वो happy moments याद आए. अलमारी में बंद करके रखने से क्या फायदा? So I feel a lot of synergy. I feel a lot of synergy in what do you say about keeping happy photos, just like how we took out just now? Yeah, it's a great idea. So the concept is simple. Keep those things around you which make you happy. Yeah. And you can imagine the life you will live after that. Yeah. We also have something called Scope Day, Scope Week, Scope Month, and and one more thing about Scope. Scope stands for Scope Camp, SCOPE. S stands for silence. That's the first. Silence means when we are not disturbed, when we are clear, peaceful, when we are peaceful, silence. Then C stands for clearing. So clearing the body through food, clearing the body through pranayam and yoga, clearing the mind through meditation, clearing the intellect by changing the beliefs, like how you are doing right now, changing the belief, and then clearing the soul or atma by just seeing God in everyone. So S, silence, C, clearing. Then O, once you are clear, everything is clear, then organizing is a natural consequence of that. And once you organize, then planning comes naturally out of organizing. And then you energize. E stands for energy through food, exercise, thoughts, beliefs, and consciousness. It's called Scope Camp. That someone has mentioned. So we go this for 4 days. Every 2 months, I tell people, take out 4 days. That's less than 5% of your time. Keep for clearing your mind. The more you clear, elevated, as you said, your energy goes up and you feel wonderful about life. Life is magical, but we experience magic when we declutter this way. So anything you have to say on that? Yeah, this is a very beautiful thing you said, Scope. True. It's it's exactly in the same sequence that we follow even in the decluttering process. So let's say if you are confused for anything, we always tell them that put it in a box, and if you're not using it for 6 months, that means you will never use it again. You let go. Or if you are too much confused, just sit in silence. So your S comes there. So when you sit in silence, you introspect, and then you start clearing or decluttering, and then organizing, and once planning. So like you said, we also plan. So we put small labels on things because it's a new system. So you start getting acquainted, trained to that new system. And last is energy. So it's all about abundance. When you clear your space, you are creating space for new energies, new abundance to come into your life. And that is the reason people get breakthroughs, amazing results after going through this process. Yeah, so you just mentioned something about clearing something. So I'm just taking 2 minutes of your time also just to show you, show everyone rather, one PowerPoint which we have been playing for since quite some time. And I think it resonates with just now what you just shared. This same thing, it will take
2 minutes and just see this, everyone. All right, here it goes. See, I'll ask you these questions and quick questions, quick yeses and all. So have you have a habit of hoarding? Hoarding means आप ये रखते हैं objects कि एक दिन कहीं ना कहीं आपको यूज करेंगे, ऐसा आपने रखा है सबके पास. Most of us will say yes, you know, that way. Next question, have you have a habit of accumulating money, not spending it, कि कल को कभी ना कभी हमको इस्तेमाल करने का हम सेव करेंगे. फटाफट क्वेश्चंस है. ओके. थर्ड वन, have you have habit of कपड़े रखना, फर्नीचर, बर्तन, जूते, इस टाइप से कभी ना कभी इस्तेमाल करें. तो एक कभी हैबिट है कि आप अंदर से गिला शिकवा, निराशा, डर, ये भी हम रखते हैं. अगर हम करते हैं तो हम अपने समृद्धि के अगेंस्ट जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि जब हम अंदर से क्लियर कर रहे हैं तो it becomes necessary that you get rid of useless things. जब आप इस्तेमाल नहीं करते और उसको दे देते तो समृद्धि आना शुरू हो जाता है आपके लाइफ में. और क्यों आता है कि हमारे अंदर में जो भी गिला शिकवा, नफरत, ये भी पकड़ कर रखते हैं, तो हम इसको क्लियर करते हैं. Goods must circulate. Clean your drawers, wardrobes, or garage. Give away what you don't use any longer. The attitude of keeping a heap of useless stuff ties our life down. It's not the objects you keep that stagnate your life. यानी कि जो हम रख रहे हैं वो stagnate नहीं, उसके लिए stagnate नहीं होते हैं, लेकिन it is the attitude of keeping. ये जो हमारा अंदर से आदत हो गया कि हम रखना चाहते हैं, ये attitude को छोड़ना है. Yeah, absolutely. So it's a habit. बिल्कुल सही कहा उन्होंने. कहते हैं ना, the way you do one thing is the way you do everything. तो ये एक हैबिट है. तो अगर आप मटीरियलिस्टिक चीजों में ऐसा कर रहे हैं तो शायद आप इमोशंस में भी वैसा ही करेंगे. जो उनके एग्जैक्टली सटीक क्वेश्चंस थे कि आप लोगों की बातों को पकड़ के रखते हैं, चीजों को. तो अगर आप चीजों को पकड़ के रखते हैं तो चांसेस है कि आप बातों को भी पकड़ के रखते हैं. लास्ट पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट. जब हम पकड़ कर रखते हैं तो हमको कि हम वाइब्रेशन क्या बेचते हैं, इस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. जब हम पकड़ कर रखते हैं तो वाइब्रेशन क्या बेचते हैं कि कल को हमको शायद नहीं मिलेगा. यानी कि हम कमी से इस्तेमाल होता है. वी आर कमिंग आउट ऑफ लैक, नॉट आउट ऑफ अबंडेंस. कमी से, नॉट आउट ऑफ समृद्धि. कल को शायद नहीं मिलेगा और हम यूनिवर्स को, ब्रेन जो है मैसेज भेज रहा है, दो मैसेज भेज रहा है कि मैं कल का ट्रस्ट नहीं करता, के ऊपर मेरा विश्वास नहीं. ये पहला. तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए. अभी कैसा देना है वो रचना जी कहेंगे अभी. Okay, कैसा देना है. That is a beautiful part I learned. Okay, so that is something beautiful. Share. You can share how to give it. Yeah, so how to give it? So you make, like I told you, there are two basic things you have to take a call on. Ki whether it is sparking joy for you or it is making your life easier, better or faster. तो ये आपको decision लेने में help करेगा. Then you do a simple process जहां पर you first take out everything that you have. I'll start with clothes only. Let's say you want to tomorrow. तो आप क्या करिए, आप आपके कबर्ड में से सारा सामान निकाल लीजिए नाउ और उसका एक पाइल बना लीजिए, माउंटेन बना लीजिए. नाउ दैट इज अगेन अ वेरी पावरफुल प्रोसेस. जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग खाली 20% ऑफ चीजें यूज करते हैं. तो वो प्रोसेस से ना आपको इतना सेल्फ रियलाइजेशन होगा. यू विल रियलाइज कि ओ माय गॉड, आई हैव सो मच बट आई एम हार्डली यूजिंग. सो दैट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस.
सो कुछ भी आप क्लियर करते हो ना, उसको सबको निकाल कर अपनी जगह से एक साथ अपने सामने रखिए, अपनी साइट में रखिए. दैट इज अ वेरी is a process of full of realization. And then you start first with decluttering. तो आप 2 बॉक्सेस बनाइए या 2 जगह बनाइए. एक जगह जो चीजें आपको डिस्कार्ड करनी है, जो लेट गो करनी है, और एक जो आपको रखनी है. और तीसरा पाइल, जैसा मैंने बोला कि अगर कोई चीजों पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि रखूं या जाने दूं, समझ नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो keep that as a separate pile or a box. And if you don't use it for the 6 months, that means you can still manage in your life without it. Then you let go of it. And then आप उनको, जो डिस्कार्ड वाली फाइल है, every cloth, आप उसको let go with gratitude. और ये इतना पावरफुल प्रोसेस है. So this entire process, I want to ask you all in what does this process teach you? Any one thing you want to share, and then I will sum up कि क्या ये process हमको लाइफ में क्या चीजें बताता है. तो मनोज जी ने बहुत ब्यूटिफुली हमको काफी सारे एस्पेक्ट्स कवर किए, but I would want to just sum it up. Yes, let go, very important things. Let go. Anything else? We live in insecurities, right? Okay, let go with gratitude. Beautiful. So, जो मैंने पूरा कैटेगरी वाइज चीजें बताई, basically there are 4 or 5 important things that we learn from this process. Number 1, most important, of course, letting go. Number 2, जब आप कैटेगरी वाइज करते हैं तो क्या होता है, you hone your decision making skills. और लाइफ में हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिस करते हैं कि शायद हम सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते. तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे ये होन करता है. थर्ड ब्यूटिफुल थिंग, it teaches us to be resourceful and also live. We learn to live without few things in our life which we don't need. उनके बिना भी हम लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं. एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि मैंने एक फ्लावर वाज किसी ने गिफ्ट किया था और मैंने उसको लेट गो कर दिया, मैंने किसी को डोनेट कर दिया. अब फिर अगले ही दिन किसी ने मुझे एक बड़ा सुंदर सा बुके गिफ्ट किया और मुझे उस फ्लावर वाज की याद आ गई. तो मैंने कहा अब क्या करूं. कुछ नहीं, मैं नया नहीं खरीदने गई, मैं किचन में गई, एक बड़ा सुंदर सा ही ट्रांसपेरेंट जग था. मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आज इसमें ही लगा देती हूँ. उसमें भी लगाया तो बड़ा सुंदर लगने लगा. दैट मीन्स I learned to live and manage with the resources that I have. Yeah. I still in regard learn. with this, Rachana ji, Guruji has given us one more wonderful aspect. Ki once in a year, I do that. Basically, once a year, he gave us some project called Padyatra. Padyatra means you take one pair of clothes, one you wear, one you take, and you travel around India anywhere without money. Most important, without money and just 2 pairs of clothes. Okay, so मैं हर साल ये लेता हूँ. लोगों ने, हमारे बहुत से टीचर ने, they go from Kanyakumari to Kashmir, 90 days का सफर है. तो मैं हर साल करता हूँ, लेकिन 90 days नहीं, एटलीस्ट 7 days का मैं ये यात्रा करता हूँ. तो कहीं से भी शुरू करना है, कभी भी एंड करना है, किधर भी सो, किधर भी जो भी मिला. You don't have money, so you have to do the bhiksha. And mostly, I mean 50% कभी कभी मैं मांगता हूँ, लेकिन most of the time लोग आकर दे देते हैं. आप कहाँ से आए, आपने खाना खाया क्या, नहीं खाया, हमारे घर पे आओ या हमारे मंदिर पे आओ. Like this, you keep on walking. So जैसा आपने अभी बताया कि हम बिना मोबाइल, बिना ये सुविधा, बिना खाना, बिना कमाई, बिना सब कुछ, एटलीस्ट इंडिया में it is so easy. Even abroad, I'm saying people have done. There's one lady, she has walked more than 25,000 miles. Her name is Peace Pilgrim. Peace Pilgrim, you can Google and find out.
and Guruji would mention about her. So how to just walk, enjoy the beautiful, explore the beautiful world, meet different people, and just enjoy this whole journey called life. So that's one of the aspects which many of us go through this. Yeah. Absolutely, absolutely. I always say कि ये जितनी भी चीजें अभी हमारे, these are all our Indian traditions, Indian things. खाली हुआ क्या कि ये बाहर गई, बाहर के लोगों ने रिसर्च की, उसको एक न्यू फॉर्म में पैकेज करके हमको दे दिया और हम उसको बड़ी अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं. But these are all our Indian values and traditions which are now coming back to us. Yeah, beautiful. And what do you say about, I've seen people even keeping music talks, like social media abhi itna hai, unka phone dekho, the phone is full of clutter. मैं बोला क्यों, अगर नहीं इस्तेमाल करते तो delete it. So just now my daughter, she has got wonderful, she is very much into music. So she's got wonderful music. मैंने बोला सब music दे दो. She's saying सब ऐसे आप पहले सब दे दो, फिर मैं एक एक करके सुन के डिलीट मारूंगा. जो मुझे लगता है मैं इस्तेमाल करूंगा वो मैं रखूंगा, बाकी का सब मैं डिलीट मारूंगा. She's saying you choose. I said no, it'll take too much time. You give me all and I will go on deleting. So that process of deleting also releases a chemical called dopamine. Every time you mark a tick and you make a to-do list and you make a tick, 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 okay, it releases dopamine. So people go and buy chemicals of dopamine just to elevate the energy. इधर free मिलता है, आप सिर्फ to-do list बनाओ और टिक टिक करो या कुछ ना कुछ दे दो लोगों को, तो that will, जब आप देते, जो रचना जी ने बताया, that will give you the chemical called serotonin also, and you give it with love and gratitude, then you will get the release chemical called oxytocin. Oxytocin is a chemical when you help others who are in need, and you are not only giving away कि आपको नहीं चाहिए, लेकिन जिसको देते हैं उनको अगर उनका जो अगर वो लोग को वैल्यू होता है, तो you multiply that chemical and you multiply the happiness, joyfulness and samruddhi in your life. Anything you want to say on that? Yeah, absolutely, I agree with you. तो इसी में हम लोग एक छोटा प्रोसेस we do is we tell them to take before and after pictures. So before you do your decluttering and then after you do the decluttering, and let's say you are giving it to somebody, not to show off, not to brag, but take a picture of that as a memory. And you've rightly connected it with the scientific ways, how it can create, with these release of these chemicals. So before and after picture भी एक तरह से आपके बॉडी में जो डोपामिन आप बोल रहे हो कि उसकी वो होती कि अरे वाह, इतने टाइम से पेंडिंग काम मैंने करा, डीक्लटरिंग करी, मैंने इतना सारा लेट गो किया. Beautiful.